مریم صاحبہ کیا کہیں گی آپ کہ آج ایک بار پھر عدالت میں جو کچھ ہوا ہم سب رپورٹرز کے سامنے نئے والے بالکل بے بسی کی تصویر دکھائی دے رہی ہے. اسی طرح کی صورتحال ہے جیسے عمران خان اپنی ضد پہ اٹل رہے, نئے والے بھی کہہ رہے ہیں کچھ ہوا ہے, لیکن عدالت نے جو ریمارکس دیتی ہیں آج اس سے آپ کا کیس تو بالکل ہمیں کلیئر ہوتا دکھائی دے رہا ہے. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے میں تو صرف یہ آج تو اتنا کہوں گی کہ قدرت کا اصول ہے کہ سچ جتنی چاہے دیر سے سامنے آئے لیکن سچ سامنے آتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ ٹروتھ ول پریویل اینڈ فالس ہوڈ از باؤنڈ ٹو پیرش. تو سچ اللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دن سامنے لاتا ہے اور جھوٹ جو ہے اس کو مٹ جانا ہوتا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہوگا ضرور, مجھے اللہ تعالیٰ پر پورا بھروسہ ہے. اور جب فیصلہ ہوگا اس کے بعد میں اپنے کیس پہ آپ سے بات کروں, وہ والی باتیں بھی کروں گی جو پچھلے 5 سال جب سے یہ کیس 2017 سے چل رہا ہے جو میں نہیں کی میں اب کروں گی. جی خان صاحب نے جو جج صاحبہ کے حوالے سے الفاظ استعمال کیے اور اسلام آباد کے سینئر پولیس افسران کے حوالے سے ہائی کورٹ نے ان کے خلاف جو دہشت گردی کی دفعات اس کو خارج کر کے جو دیگر دفعات اس پہ کیس چلانے کا حکم دیا. اس پہ کوئی آپ دیکھیے ان پہ جو بھی دفعہ لگے, چاہے وہ دہشت گردی کی ہو یا وہ توہین عدالت کی ہو یا وہ ایک جج کو للکارنے کی ہو, اس کو ڈرانے کی ہو, اس کو دھمکانے کی ہو, ان پر جو بھی دفعہ لگائی جائے وہ ہر دفعہ میں کنوکٹ ہوتے ہیں کیونکہ وہ یہ پوری دنیا کے سامنے کر چکے ہیں. اس کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ ایک بلی ہے اور اس نے طریقہ یہ اپنایا ہوا ہے کہ جہاں پر اس کے اوپر مشکل آتی ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو للکارو, اس کو دھمکاؤ, اس کو ڈراؤ اور اپنا راستہ صاف کرو. تو یہ چیز عدالتوں کو ڈسکریج کرنی چاہیے کیونکہ نہ یہ ملک کے لیے اچھی ہے, نہ یہ ملک کے مستقبل کے لیے اچھی ہے, نہ یہ قوم کے لیے اچھی ہے, نہ یہ اداروں کے لیے اچھی ہے. میڈم یہ بتائیے, عمران خان بہت مسٹر ایکس اور وائی کی بات کر رہے ہیں, ان کے بیانیے میں پھر ایک ایگریشن آ گیا. کیا میاں صاحب کی طرح یہ ایگریشن کچھ مفاہمت کے تحت ختم ہو جائے گا یا رہے گا؟ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ یہ پوچھ رہا تھا کہ چکوال گئے تھے کل, آپ نے کہا کہ چکوال میں کھڑے ہو کر ان کو آرمی چیف کی تعیناتی بڑے یاد آئی, تو پھر بے چینی بھی لگی, کو فرسٹریشن بھی دکھائی دی عمران خان صاحب کی. تو یہ کیا وجہ ہے کہ وہ چکوال پہنچے تو پھر وہ جو خاموشی اختیار کی تھی وہ دوبارہ جو ہے اس میں تیزی آ گئی؟ تو یہ چکوال کی زمین کا کوئی پانی تھا اس قسم کا جس وجہ سے ان کو آرمی چیف کی تعیناتی بڑے زور سے یاد آئی؟ نہیں, وہ زمین کا پانی نہیں ہے, وہ کچھ ایسے لوگ جو ان کے اسٹیج پہ بھی بیٹھے ہوئے تھے وہ والا نیکسس ہے. اور میں نے کل اپنی ٹویٹ میں وہ کہہ بھی دیا تھا. لیکن دیکھیں چکوال کے جلسے کے اندر کچھ باتیں بہت پرومیننٹ تھیں. میں عمران خان کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا. میں بالکل سمجھتی ہوں کہ وہ نان ایشو ہے, وہ ایک ایسا ایشو ہے جس کو ہمیں سب کو ڈسکارڈ کر کے پاکستان کے ریئل ایشوز پہ فوکس کرنا چاہیے. ہاؤ ایور وہ بہروپیے کی جو منافقت ہے نا اس کو پاکستان کی قوم کے سامنے ایکسپوز کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے. تو کل میں نے کچھ چیزیں نوٹ کی. میں اس عذاب سے, ان کی جو تقریر ہے اس کو سننے کے عذاب سے گزرنا پسند نہیں کرتی. لیکن ایک چیز میں ضرور کہوں گی کہ وہ انہوں نے ابھی جو فرمایا کہ مسٹر ایکس مسٹر وائی خوف کے بت توڑ دو, کیا اپنے لوگوں کو وہ کہہ رہے تھے کہ خوف کے بت توڑ دو اور غلامی کی زنجیروں سے آزاد ہو جاؤ؟ اگر یہ تمہیں ڈرائیں تو تم ان کو ڈراؤ, تو یہ تمہیں دھمکائیں تو تم ان کو دھمکاؤ. تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر میں وہاں سامنے کھڑی ہوتی تو میں یہ سوال کرتی کہ آپ کے اندر خود ان کا نام لینے کی ہمت نہیں ہے, آپ کی ٹانگیں تھر تھر کانپتی ہیں, آپ کہتے ہیں مسٹر ایکس مسٹر وائی. اگر آپ کے اندر نام لینے کی ہمت نہیں ہے تو قوم کو کیا سبق دے رہے ہیں کہ وہ ان کو للکارے, ان کو ڈرائے, ان کو دھمکائے؟ مریم آپ کے دور میں اور پھر وہ یہ کہتے ہیں, ایک اور بات بھی دیکھیں, انہوں نے کہا کہ یہ خبریں ٹی وی پہ آئیں کہ انہوں نے اس چیز سے ان کو برا لگا یہ کہ ان کے جو پارٹی کے لوگ ہیں ان کے اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات ہیں اور وہ خفیہ ملاقاتیں کرتے ہیں. تو میں تو پہلے سب سے یہ پوچھوں گی کہ انہوں نے کہا کہ مجھے بتا کے ملاقاتیں ہوں, تو آپ نے کبھی پارٹی کو بتایا کہ آپ کس کس سے خفیہ ملتے اور کیا کیا باتیں کرتے؟ جب دھرنے میں لوگوں کو آپ نے 2014 کے بعد جو دھرنا تھا اس میں آپ نے لوگوں کو کہا کہ انگلی اٹھنے لگی ہے, یہ ہو گیا ہے, وہ ہو گیا ہے, ہم آزادی کے لیے آئے ہیں, اور جنرل رحیل شریف نے بلایا تو ہنستے ہنستے نکل گئے.
वो धरने के लोगों को बता के गए थे कि मैं आपको क्या बता रहा हूँ और मैं खुद कहाँ रात को छुप के किसके पास अंधेरे में मुलाकात के लिए जा रहा हूँ। तो अपनी पार्टी से आप वही बात करें जो आप खुद करते हैं। ये नहीं हो सकता कि जलसों में खड़े होकर आप किसी को ललकारें और रात के अंधेरे में आप अगलों के पांव पड़ जाएं, ये नहीं हो सकता। मरियम, आपके दौर में मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई की जगह खलाई मखलूक और महकमा ज़राअत के नाम लिए जाते थे और आपने भी यहाँ खड़े होकर कहा था कि आपके लोगों को टेलीफोन कॉलें आ रही हैं और धमकियां आ रही हैं। तो अब जो इमरान खान साहब ने ये इल्ज़ाम लगाया टेलीफोन कॉलों का, तो आपकी हुकूमत क्या इन टेलीफोन कॉलों के हवाले से कोई तहकीकात करवाना चाहेगी? भाई हमने तो सबूत दिए, नाम भी लिए, सबूत भी दिए और कॉल्स। अब ये जो बात कर रहे हैं, मुझे तो अल्लाह ताला की कुदरत पे कभी बहुत वो भी होता है, इंसान को ख्याल तो आता है कि कल जो कॉल्स करवा रहा था, कल जो ये सारी अखाड़ पिछाड़ करा रहा था, आज अल्लाह ताला की शान है कि वो आज कह रहे मेरे मेंबर्स को कॉल्स आ रही हैं और ये कॉल्स को मना कर दो। और जब तुम लोगों को कॉल्स कराते थे तब हमें तो आती थी कॉल्स, हमें तो धमकियां भी आती थी, लेकिन हमने फेस किया। 2 महीने बाद हमारा इनकलाब फौत नहीं हो गया। अब इन कॉलों की तरदीद कर रही हैं आपकी हुकूमत? भाई मैं तो ये बिल्कुल है तो सबूत ले आओ सामने। ये XYZ क्या होता है, ABC पढ़नी शुरू कर देते हो, है तो सबूत ले आओ ना। बताइएगा कि पंजाब में कहा जा रहा है कि तहरीक अदम एतमाद की तैयारी है आप ला रही है, उसकी तैयारी कैसी है? दूसरी बात यह कि आपको यहाँ पर इंतहाई शान तरीके से प्रोटोकॉल दिया जा रहा होता है, इसकी बुनियादी वजूहात क्या है? ये जो आपने पंजाब की बात की, देखें वो अदालती हुकूमत है, वो नाजायज हुकूमत है, उसको इंशाअल्लाह ताला एक ना एक दिन खत्म होना है। जितनी जल्दी हो जाए उतना बेहतर। इमरान खान साहब की प्रोटोकॉल की तरफ बात मार्च के हवाले से तैयारियां कॉल दे दी गई है, क्या आप लोग पावर के जरिए उनको रोकेंगे या फिर कोई डायलॉग या फिर मुज़ाकरात के जरिए मामलात को टैकल डाउन करने की कोशिश करेंगे? देखिए लॉन्ग मार्च हमने भी किए, बाकी जमातों ने भी किए। मैं जमहूरियत की हामी हूँ, मैं जमहूरियत में जमहूरी राय का एहतराम करती हूँ, लेकिन ये बात जमहूरी जमातों की और ये जमहूरी लीडरान की। जो इंसान जत्थे लेकर आ जाए और कभी वो कहे कि प्राइम मिनिस्टर को गर्दन से निकालो, मार मार के पुलिस वालों की हड्डियां तोड़ दें, और फिर जनरल राहील शरीफ से मुलाकात करने रात के अंधेरे में हंसता हंसता निकल जाए, और उसके बाद वो जब कहे कि मैं इलेक्शन की डेट लेने आ रहा हूँ तो पूरे इस्लामाबाद को नजर आतिश कर दे और जो इमलाक हैं उनको नजर आतिश कर दे और जत्थे लेकर हमला आवर हो कि मेरी बात अगर नहीं मानी तो मैं आग लगा दूंगा। मैं इसको ना जमहूरी जमात समझती हूँ, ना जमहूरी रवैया समझती हूँ, ना जमहूरी लीडर समझती हूँ। उनको लॉन्ग मार्च की जरूरत थी, कुछ थी, तो उसके एक तरीके होते हैं। आप धमकाने के लिए नहीं कर सकते। और फिर वो सारा जो नैरेटिव दिया था उन्होंने कि मेरे खिलाफ साजिश हो गई, मुझे अमेरिका ने मेरे खिलाफ साजिश कर दी, बैनुल अक़वामी साजिश कर दी। आज उन्हीं लोगों को बुला के उनसे मिल रहे हैं, उनको पैसे दे रहे हैं कि मेरे दोबारा से ताल्लुकात जो है वो बहाल कराओ। तो किधर गई वो साजिश जिसके नतीजे में हमने ये इनकलाब देखा था, गुलामी की जंजीरों से आज़ादी, इनकलाब लेके आ रहा हूँ। तो वो इनकलाब तो राना सनाउल्लाह के डर से निकला ही नहीं। एक सेकंड और उसके बाद अब आप देखें वो चलता हुआ वहां से कि मेरे खिलाफ खत आ गया, साजिश हो गई, अमेरिका ने साजिश कर दी, इंपोर्टेड हुकूमत आ गई, ये हो गया। और अब क्या बात है, अब आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट पे आके सारी बात रुक गई कि मेरे पसंद का चीफ अपॉइंट करोगे तो ठीक है, नहीं तो मैं पूरे इंस्टीट्यूशन को जो है वो मिलाइन कर दूंगा, उनके चेहरे स्याह कर दूंगा। ये रवैया एक जमहूरी इंसान का रवैया है। मुझे इस बात का जवाब चाहिए कि ये कोई जमहूरी इंसान का रवैया है मैडम कि मेरे पसंद की अगर बंदा नहीं आया तो मैं सबके चेहरे दागदार कर दूंगा। उनमें से ऐसे ऑफिसर्स भी हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगियां कुर्बान की हैं, दी हैं, कुर्बानियां दी हैं, इस ओहदे तक पहुंचे। मरियम, इमरान खान की बात ये, और ये जो कि नवाज शरीफ को नहीं अपॉइंट करना चाहिए, जरदारी को अपॉइंट नहीं करना चाहिए, चोर क्योंकि वो उनकी चोरी को प्रोटेक्ट करते हैं। तो बात ये है कि अपनी भी इमरान खान साहब की चोरी, वो जो हीरों का हार था वो पकड़ी गई थी, तो असल में ये अपनी चोरियों को छुपाना चाहते हैं, बात और कुछ नहीं। वो याद है ना हीरों का हार जो चोरी हुआ था। ये सब जो है ना, ये सब ये ड्रामा है और ये पूरी दुनिया जानती है भाई। की मुलाकात होनी चाहिए थी। लॉन्ग मार्च के मुकाबले में आप महंगाई मार्च का ऐलान कब करेंगे? भाई मैंने तो यही बात की
मैंने तो बिल्कुल यही बात की है कि जो मुलाकात की है रात के अंधेरों में अगर की है तो बताओ ना कौम को, अपनी जमात को बताओ, अपनी को कमेटी को बताओ कि मैं किससे मुलाकात करके आया हूँ। तुम बताते हो अपने लोगों को जो वो तुम्हें बताएं। शमीम पे जब वो आया था एफिडेविट तब आपने कहा था कि ये जो हुकूमत आती है वो जाने वाले को लाट करती है, जो भी हुकूमत आती है पिछले 75 साल से, लेकिन ये कोई नहीं बता रहा इस कौम को कि इस मुल्क की असल मसले की जड़ क्या है। मैं बता रही हूँ जी। शमीम के हवाले से आज जब उनका एफिडेविट वाला मामला आया था, सारा कुछ आया था, तो आपने यहीं पे खड़े होकर कहा था ये कुदरत का कानून है, फतह हुई है, सच की फतह हुई है, लेकिन उसने यहाँ पे अब अपना माफी मांग लिया, वापस ले लिया, इस पर क्या कहें? देखिए उन्होंने जो भी किया मुझे नहीं पता उसके पीछे मुहर्रिकात क्या हैं, लेकिन एक राना शमीम की गवाही नहीं है उसमें गवाहियों के अंबार लगे हुए हैं। उसमें जो वफात पा गए हैं अल्लाह ताला उनकी बख्शिश करे, जज अरशद मलिक से लेकर शौकत अजीज सिद्दीकी साहब, उन्होंने वो सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है, वो सब कुछ की वीडियोस बनी हुई हैं, लोगों ने देखी हैं, सुनी हैं। शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने जो इंकशाफात किए हैं वो उन्होंने लाइव किए थे लोगों के सामने, दुनिया ने सुने। तो आप किसकी गवाही को जुटलाएंगे? और जिस तरह ये नैब ने फरार इख्तियार किया है मेरे केस में, अभी नवाज शरीफ साहब इंशाल्लाह वापस आएंगे, उनके केस में भी दूध का दूध पानी का पानी होगा इंशाल्लाह, क्योंकि इंसाफ की जीत होके रहनी है। लेकिन फिलहाल जो मेरे केस में नैब की ने जो फरार इख्तियार किया उसका मतलब यही है कि जो कुछ जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने फरमाया था, जो जज अरशद मलिक ने कहा, जो राना शमीम साहब ने कहा कि वो हू बहू सच है, 100% सच है, उसको कोई जुटला नहीं सकता। अगर कोई सबूत है तो सामने रखें। आप कहते थे कि इमरान खान लाडला है, अभी रात को मिस्टर एक्स वाई बोलते रहकर अब भी लाडले हैं वो किसी के। और उन्हें एक बात बता दूं, वो जिसके लाडले हैं ना वो इमरान खान को लाडला नहीं समझते, वो अपना काम निकालना चाहते हैं। आपने बताया मुझे उनका सवाल लेने थे। आपने महंगाई मार के ऊपर बताना था प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने इमरान खान साहब ने मुख्तलिफ औकात में जो बातें मजहब के बारे में, इस्लाम के बारे में, कुरानी आयात के हवाले से की वो दिखाई। उसके बाद हमने देखा कि और उन्होंने कहा कि अगर आपने बात करनी होती है तो या तो आप पढ़ के आया करें या आप इस पर बात न किया करें। उसके बाद उनके खिलाफ पंजाब में भी दहशतगर्दी की दफा के तहत मुकदमा दर्ज किया गया और आज केपी में भी दर्ज कर लिया गया। तो मैम ये बताएं कि वफाकी हुकूमत और मुस्लिम लीग नून की इस हवाले से क्या पॉलिसी है? मुझे वफाकी हुकूमत और मुस्लिम लीग नून की पॉलिसी का उस पर मैं बात नहीं करूंगी, मैं अपनी बात करूंगी और मैं सारी कौम की बात करूंगी। बात यह है कि बजाय इसके कि जावेद लतीफ साहब पे मुकदमा बने या बाकियों पे बने, आप अपनी बात तो देखें, आप कह क्या रहे हैं। आप कभी कहते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह से मैं कौम को आज़ाद करूंगा, मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक से लोगों को आज़ाद करूंगा, ये आप किस किस्म की ज़बान बोल रहे हैं? कभी आप कहते हैं कि 1,40,000 पैगंबर आए हैं दुनिया में, कभी आप ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब अपनी सियासी जिद्दोजहद में निकाल लेते हैं, कभी आप ये कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस तरह अल्लाह ताला ने अपना पैगाम देने के लिए नबूवत दी थी, इसी तरह मेरे जिम्मेदारी। आप क्या बातें करते हैं? ये आप क्या ऑल फॉल बकरे, आपको अंदाजा भी है या आपकी मेंटल कंडीशन इतनी खराब हो गई है कि आपको ये पता नहीं है? और अगर स्लिप ऑफ टंग भी है तो फिर भी आपको शर्म आनी चाहिए। एक इंसान जो अवाम से खिताब कर रहा है, अवाम के जहनों में अपनी बात डाल रहा है, उसको 10 दफा रिहर्स करके, खास तौर पर जब मजहब का मामला आए तो 10 दफा सोच के एक बात कहनी चाहिए। फिर आप स्लिप ऑफ टंग कह के भाग नहीं सकते। तो ये इजाजत पूरे पाकिस्तान में सिर्फ खान साहब को है कि वो जो चाहे कुफर बकें, ऑल फॉल बकें, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। और उस पर इतराज उठाने वाले को सजा मिलती है या उस पर मुकदमा दर्ज होता है। मैडम एक खातून साहब फौजिया शाहिद के घर में डकैती, मैडम एक खातून साहब फौजिया शाहिद के घर में आज डकैती पड़ी है रात को, उन पर तशद्दुद भी किया गया है मीडिया टाउन में। उसके हवाले से हम चाहेंगे कि आप अपने पार्टी की तरफ से भी कोई मौक़िफ़ जरूर दें। मैं उसकी मजम्मत करती हूँ। मैं राना सनाउल्लाह साहब से अभी कहूंगी गाड़ी में बैठ के कि इस केस को टेकअप करें और देखिए कि ऐसा क्यों हुआ। परफॉर्मेंस की बात करें, डॉलर ट्रेड करे 240 पे 3700 रुपए मन गंदम हो गई है, लोगों को रिलीफ देना है, आप इसलिए आए हैं।
دوبارہ الیکشن بھی آ رہا ہے، اپنی حکومت کی پرفارمنس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں میں پہلے بھی اس چیز پہ کمپریہنسولی بات کر چکی ہوں. میں ان کو بالکل اس چیز میں ایگزونریٹ نہیں کرتی کہ بجلی کے بلوں میں جو اضافہ ہوا ہے وہ عوام کی قوت سے باہر ہے. اس پہ عوام کو بڑی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا ہے اور پڑ رہا ہے مہنگائی کی وجہ. لیکن مہنگائی کی وجہ شہباز شریف صاحب نہیں، مہنگائی کی وجہ وہ IMF کا معاہدہ اور عمران خان کی 4 سال کی نالائکی اور نااہلی ہے، جس کی وجہ سے ہماری اکانومی آج کل جو ہے وہ اس پوزیشن میں ہے کہ اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کے باوجود بھی ابھی وہ ٹھیک نہیں ہو سکتی. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو 4 سال کی نااہلی اور نالائکی اس کے دورست نتائج ہوتے ہیں اور یہ آہستہ آہستہ انشاءاللہ تعالی سنبھل جائے گی. لیکن اس کا جو ذمہ دار ہے، اس کا جو مجرم ہے، اس کا نام ہے عمران خان.